Hello and welcome to Cover Story. This week we have with us BJP General Secretary Dharmendra Pradhan. Both Bihar and Uttar Pradesh form the crux of the BJP's Lok Sabha sweep. While it was Amit Shah who delivered the UP numbers, it was Dharmendra Pradhan, the BJP General Secretary, who was given charge of Bihar and who helped craft the Nitish Kumar washout in the state. A former youth BJP leader, Pradhan is close to both the RSS and Modi and is also being groomed as the next generation face of the party. Welcome to NewsX, Mr. Pradhan, for the second interview with Cover Story also. Thank you. And also, a little known fact about Mr. Dharmendra Pradhan is that during these elections, he's been working for the BJP in Bihar. Along with Mr. Modi, he was in charge of crafting the Bihar campaign. A campaign that gave the BJP, 31 seats in this election? 31. We have an alliance there with LJP and RLSP. BJP owned 22 seats, LJP owned 6 seats, and RLSP owned 3 seats. We have a good social combination. We own 31 out of 40. So this has given a big chunk. Along with Uttar Pradesh, this is the second chunk that has helped the BJP come to Delhi. No, this belt is in cow belt, what you can say. This belt is put together, Bihar and UP, it is 104. This is the big jump out of this 282. So can I call you the Amit Shah of Bihar? No. Amit Shah is a big leader. He has his own capacity and own acumen. But you are a mini Amit Shah in Bihar. No, this is not it's a compliment to me. Certainly I am very much inspired with Mr. Shah's personality and his style of functioning. He is a very experienced and seasoned leader. But tell us about your experience. I mean, how did you do this turnaround in Bihar? Because, everybody was saying, opinion polls till the end, was saying that Lalu Yadav will probably sweep. Looking into history of Bihar, people were fed up with this parochial politics, narrow politics, by name of some section, name of some sector. Lalu Yadav will probably sweep. Looking into history of Bihar, people were fed up with this parochial politics, narrow politics, by name of some section, name of some sectarian interest. Vested interest people drag the state what it should have. Reaction of this election, result of this election is outcome of that synthesis. We had an alliance with JDU to end the jungle raj of Lalu Prasad Yadav ji. We had a 17-year alliance with JDU. It was a nicely crafted social coalition. I am using the word social coalition. Nitish Kumar, for its own political interest, for his own political ambition, he went out of the alliance. He broke the alliance in 2013 June. On that issue, and 4 years before, on 2010, when BJP had a national executive in Patna in month of May 2010, we had an alliance at that time. Nitish Babu was supposed to host one dinner to BJP national executive. But he put one condition. I will host the dinner with one condition. Mr. Modi cannot be invited to that dinner. We politely denied that dinner invitation as Toto. We refused to go there. But in those times, though it was it's not a comfortable scenario, it's an embarrassing scenario for BJP. But the interest of Bihar, we carry forward the alliance. But people of Bihar did not digest that embarrassment, snubbing of Nitish Kumar to Modi very easily. From that day, polarization of Bihar started. And for his own political vision, own political aspiration, Mr. Nitish Kumar went out of the alliance. Reaction of that, this kind of mandate is there. उस समय when he went out, I remember he gave a very famous thing कि दुआ देते हैं जीने की लेकिन दवा देते हैं मरने की. Ironically, it's come true for him. देखो नीतीश बाबू अपने ख्याल में जीने वाले व्यक्ति है. एक उनकी एक विचित्र प्रकार की मानसिक बनावट है. जो सोचते हैं उसी को दुनिया मानते हैं, उसी को सत्य मानते हैं. उनको हमारे भी दुआ है उनकी जिंदगी में वो जिए. People of Bihar have given a very clear-cut mandate. What is their verdict? It is anti-Nitish, anti-Lalu, it is pro-Narendra Modi.
How much do you think Nitish का resign करना was it a smart move or was it a political gesture or was it a man in defeat? देखो, आई कैन से ये एक डेस्परेट मूव है। इससे क्या गेन कर सकते हैं? देखो, जब उनके पास, आज हमने अखबार में पढ़ा कि उन्होंने फेसबुक के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को बधाई दिया है। जब आज दूसरे एक न्यूज अखबार में भी आई है कि 27 अक्टूबर 2013 में जो पटना के अंदर गांधी मैदान में बम ब्लास्ट हुआ, उसकी डिजाइन था नरेंद्र मोदी जी को हत्या करना। उन दिनों में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। एक मुख्यमंत्री दूसरे राज्य में जाता है जनसभा करने के लिए, उनको जानलेवा हमला होता है, और जिस राज्य में घटना होती वहां के राज्य के मुख्यमंत्री शिष्टाचार बसत फोन भी नहीं करता है, पूछताछ भी नहीं करता है कि आप कैसे हो। He did not call up Modi after the bomb. He did not call up that after Patna rally bomb blast. He did not call up after this historic victory. Today we came to know he has written one attic blog in Facebook. This is the main mental block of Mr. Kumar. उन्होंने एक नई प्रकार की राजनीतिक अस्पृश्यता की बात को अपना विचारधारा की रंग दे रहे हैं, नैतिकता की रंग दे रहे हैं। ये एक डेस्परेट मूव है। उनकी पार्टी को 24 स्थान पे जमानत जब्त हुई है। उनकी जो गृह जिला है, जिसको उन्होंने अभी 10,000 वोट से जीता है, जहां उनके अपने विकास के प्रयोगशाला बनाए हैं, वहां की लोकसभा में लोगों ने उनको अस्वीकार किया। इसलिए यह प्रमाणित करता है नीतीश बाबू की इस प्रकार के राजनीतिक हथकंडे, अपने पार्टी में अंतर विरोध को छुपाने के लिए उन्होंने कदम उठाया है। ये कोई एक कॉस्मेटिक स्टेप है ये। But in the next elections, who will be? It will be Sushil Modi who will be the BJP's face, or you have some other plans? नहीं, सुशील मोदी हमारे बिहार इकाई के एक प्रमुख नेता हैं, लेकिन हमारे वहाँ who will be our leader, that will be decided at the appropriate time, and this right is vested with our parliamentary board. All the parliamentary board, when the situation will arise in our parliament board, will decide who should lead Bihar. Okay, there's also another feeling, that BJP has won in many states, but now to get the leadership in those states to consolidate the win, like Uttar Pradesh, for example, 73 is an unheard of figure in recent times BJP's got. But now how will you capitulate that to a state victory? No, let me remind you, when we won in early 90s in UP, this question was also there at that time. Who is your face in UP? Kalyan Singh ji came up, Rajnath Singh ji came up. This is the issue. When people has given this huge mandate, somebody from the state, some capable person of the state will emerge, and they will, on his leadership, we can run through the system. Okay, moving from the state to the center, all eyes are focused on a possible Modi cabinet, who's going to play a role, and what role will there for the old guard, people like Advani ji, Joshi ji. There's a joke in the BJP के सारे जो जीज हैं उनको अडवाणी जी, सुषमा जी, जसवंत जी, जोशी जी, उनको जीज भी बना दो, गवर्नर हाउस में भेज दो। देखो, ये सारे अटकलबाजी आकलन 2 दिन पहले पूर्ण विराम उसके ऊपर आया है, जब नरेंद्र भाई मोदी जी को पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में बीजेपी अपना संसदीय दल के नेता चुना। जिस ढंग से माननीय आडवाणी जी से लेकर तमाम राष्ट्रीय नेतृत्व उनकी नेतृत्व को स्वीकार किया, और जिस ढंग से नरेंद्र मोदी जी ने उसकी आभार प्रकट किया, देश को बताया कि मैं आज बड़ा हुआ हूं, मैं बड़ा हूं इसीलिए बड़ा नहीं दिख रहा हूं, मैं इन वरिष्ठों की कंधे पे उन्होंने मेरे को बिठाया इसलिए मैं बड़ा दिखता हूं। मैं मानता हूं इस प्रकार की आकलन, अटकलबाजी की कोई अभी अर्थ नहीं है। पार्टी एकजुट है, मोदी जी उसकी नेतृत्व करते हैं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, बनने वाले हैं थोड़े दिन में औपचारिक रूप में, उनको राष्ट्रपति जी ने न्योता दिया है। और हमारी व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में, प्रधानमंत्री जी अपने विवेक के हिसाब से योग्य लोगों को चुनते हैं मंत्रिपरिषद में। और भारत बहुत दिनों के बाद बड़े आशा के साथ इसे एक निर्णायक मत दिया है। मोदी जी एक उत्तरदायी शासन देंगे, एक शक्तिशाली नेता के नाते उभरेंगे, ये सबकी इच्छा है।
But Modi, if he may have to accommodate people, even second-rung leaders like Sushma Swaraj, Nitin Gadkari, Rajnath Singh. But they are saying Modi's style of governance is such कि वो hands-on leader हैं, ज़्यादातर bureaucrats से काम कराते हैं. So the more important, they will get their ministry posts, but there will be ornamental titles. Actual work Modi will get done through his bureaucrats. ये एक बेबुनियाद गुजरात में ऐसा ही हुआ है जैसे. ये गुजरात में अमित शाह जी वहाँ की सरकार में मंत्री थे, जिन्होंने अभी अमित शाह was known more for UP than in Gujarat really, he didn't do really the अमित शाह जी गुजरात में एक सक्षम मंत्री के नाते काम किए. आज आनंदीबेन पटेल जी मुख्यमंत्री बनी है. सौरभ पटेल जी देश में एक अच्छे वित्त मंत्री के नाते जाने जाते थे. अभी जो नितिन भाई पटेल वहां का वित्त मंत्री बने हैं, वो एक अच्छे वित्त मंत्री है. देश उनको मानता है. राज्यों की मंत्रियों की जब बैठक होती है, उनकी नेतृत्व को स्वीकृति मिलती है. ऐसा नहीं है. एक प्रजातंत्र में, प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में चुने हुए लोगों की सरकार बनती है. सरकार के मुखिया की विजन से सरकार चलती है. There are a lot of expectations that when Narendra Modi comes, he'll make some kind of a big ticket announcement. We are expecting it to be on the economic front. What will be his first priorities? देखिए, देश में जिस प्रकार की एक दिवालियापन की स्थिति है, उससे देश को एक सबसे प्रमुख चुनौती है. भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक कुप्रबंधन, सीमा की सुरक्षा, ये सारे मुद्दा इकट्ठा है. इसके खिलाफ लोगों की गुस्सा बनी है. 10 साल की गुस्सा इकट्ठा है. इसीलिए मोदी जी के ऊपर लोगों ने भरोसा जताया कि ये व्यक्ति आने से हमारी काम को करके दिखाएगा. इसलिए अर्थनीति को ठीक करना एक सबसे पहला प्राथमिकता इस सरकार की रहेगी. रोजगार बढ़े, महंगाई पे एक नियंत्रण हो, भ्रष्टाचार रुके. ये सारा विषयों पे देश की जनता बड़ी उत्सुकता से दिख रही है और हमें मानना है कि ये सारे सेक्टर में मोदी जी की प्राथमिकता बनी रहेगी. But what will Modi do? We already had an economist as a prime minister. He couldn't deliver. So what magic formula does Modi have? देखिए, मनमोहन सिंह जी और नरेंद्र मोदी जी में एक मौलिक फर्क है. नरेंद्र मोदी जी के पास जवाबदेही है, उनके ऊपर जवाबदेही का बोझ है. मनमोहन सिंह जी तो नौकरी में थे, जवाबदेही का बोझ तो उनके दूसरे किसी के हाथ में था. सत्ता की रिमोट तो और किसी के हाथ में था. ये तो सिर्फ मुखौटा थे. बड़े विद्वान व्यक्ति रहे, बड़े अर्थशास्त्री रहे, लेकिन उत्तरदायी, जवाबदेही ये उनकी डीएनए में नहीं था. इसलिए देश की इतने बड़े 125 करोड़ देश की प्रधानमंत्री, जो विश्व को नेतृत्व करने का क्षमता रखता है, उसकी इतना लाचार प्रधानमंत्री से काम नहीं चलेगा. देश की जनता ने उस पर मैंडेट दिया है. ये एक मौलिक फर्क होगा कि एक उत्तरदायी प्रधानमंत्री, ये एक चुप्पी साधने वाला प्रधानमंत्री. ये एक मौलिक फर्क होगा. पर आपने बात की रिमोट कंट्रोल की, सो दैट पॉइंट ब्रिंग्स मी टू द आरएसएस. हाउ मच ऑफ अ कंट्रोल विल द आरएसएस हैव ऑन मोदी? मोदी जी की रिमोट कंट्रोल देश की जनता के हाथ में रहने वाला है. देश की जनता ने मोदी जी को चुना है. हमें कोई छुपाने की बात नहीं है. मोदी जी आरएसएस के स्वयंसेवक है, वो कभी छुपाते नहीं है. उनकी जो जिंदगी आज बनी है वो आरएसएस की संस्कार के कारण, भारतीय मूल्यों की संस्कार के कारण वो इस प्रकार की जिंदगी वो आज जी रहे हैं, बनाए भी हैं. इसलिए माँ और बेटे की जो रिश्ता है और आरएसएस की और मोदी जी की वो रिश्ता है. बेटा योग्य होता है तो माँ उसको रोज नहीं कहता कि फलाना करो फलाना नहीं करो. हाँ, बीच बीच में कह देती है कि बेटा ठीक ठाक सेहत रखो, ये चीज खा लो, स्नेह से कहती है. लेकिन योग्य संतान की ये भूमिका की रहती है कि वो अपने पैर पे खड़ा होके माँ की भी सेवा करे. बट स्नेह से कहती है, लेकिन अटल जी और आरएसएस का भी रिश्ता अच्छा था. बट इफ आई रिमेम्बर व्हेन, आपको याद होगा जब उनकी इलेक्शन के बाद जब वो अपने मित्र जसवंत सिंह को ही वांटेड टू मेक हिम फाइनेंस मिनिस्टर, आरएसएस सेड नो बिकॉज ही हैज लॉस्ट एन इलेक्शन, यू कैन नॉट. और जसवंत सिंह जी नहीं बने लास्ट मिनट में. सो विल दैट हैपन विद मोदी ऑल्सो अगेन? देखो, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ. ये तथ्य आपकी कोई सत्य पे आधारित नहीं है. ये हमें सुना गया था उस समय, आप सुने थे. मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ, ये तथ्य है, तथ्य सही नहीं है. तथ्य सही नहीं है, लेकिन दे, फॉर एग्जाम्पल नाउ यू आर सेइंग मोदी विल लाइक टू मे बी ओपन अप द मार्केट और ट्राई एंड ब्रिंग इन सम सॉर्ट ऑफ लिबरलाइजेशन. हाउ विल द आरएसएस रिएक्ट? जैसे कि इवन विद वाजपेयी डिसइन्वेस्टमेंट, स्वदेशी जागरण मंच ने बहुत उनको अपोज किया था. सो दीज काइंड ऑफ इश्यूज आर गोइंग टू कम अप विद द आरएसएस. सम थिंग्स दे बिलीव इन व्हिच डोंट फिट इन विद टुडेज कंडीशंस. देखिए, जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी की जो अर्थनैतिक अधिष्ठान है, जो मान्यता है, जो स्पष्टता है कि हमको एक केंद्रीभूत अर्थनीति नहीं चाहिए. हमको एक खुला अर्थनीति, विकेंद्रीकरण अर्थनीति, डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी चाहिए.
इसकी अर्थ नहीं है कि ऐसा हम बाजारवादी व्यवस्था ले आए जो संवेदनहीन हो, इनसेंसिटिव हो। कभी मोदी जी इस प्रकार, मोदी जी ने भी एक अपना राज चलाया, भारतीय जनता पार्टी की कई राज्यों में, कई प्रदेशों में शासन व्यवस्था चली है, हमको ये दुविधा कभी नहीं आई। But there is also a feeling that Modi doesn't believe in giving out welfare schemes. He rather believes in empowering rather than giving out doles, concessions. So what will happen to ये जो कांग्रेस ने तो बहुत सारी लगा रखी है होर्ड ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, उनका क्या होगा? देखो, ये एक प्रकार के एक मीडिया की अपने आप आकलन है। बताइए सच क्या? मोदी कोई आज भी आप जाइए गुजरात में, आप समीक्षा करिए, गुजरात में गरीब मेला के नाम पे लाखों लोगों की जिला स्तर पे भीड़ लगती है, साल में एक बार मेला लगती है। सारे प्रकार के किसान को अपना किसानी उपकरण, मछुआरों को मछली पकड़ने की सारे उपकरण, जीवन चलाने के लिए संसाधन जो गरीब तबके को चाहिए सरकार से, सत्ता से, वो गुजरात बांटने में, देने में सबसे अव्वल नंबर पे है। ये तथ्य है, ये कोई मेरे मनगढ़ंत बात में नहीं कह रहा हूं। Okay, let me put it another way. There are two economic models. One is, a bottoms-up theory, which is you empower the poor and then the prosperity goes upwards, which is a socialist theory, and Congress, I think, follows that. Then there is a bottoms-down theory, which is, make sure the industry is there, enable the manufacturing sector, they will create jobs and it will trickle down. That is supposed to be what we call the Modi model in a loose term. So how do you see that working in the rest of India? देखिए, समाजवादी ढांचा और सोशलिस्टिक गवर्नेंस मॉडल ये दुनिया में पिट चुका है, भारत में भी कहीं नहीं चलने वाला है। सिर्फ एक रिलीफ सेंट्रिक एक कुछ चीजों को कुछ लोगों को एक दे देने से लोग अपने पैर पे खड़ा नहीं होते हैं। कुछ लोगों, गरीब लोगों को सत्ता की, राज्य की सुरक्षा चाहिए, लेकिन इसके अर्थ नहीं कि उनकी वर्किंग एफिशिएंसी घटा दे, उनको एक निर्भरशील बना दे। इस प्रकार की ढांचा भी नहीं चलेगी। उसमें से लीकेज होती है, उसमें से करप्शन बढ़ती है, उसमें नॉन परफॉर्मेंस बढ़ती है, भ्रष्टाचार बढ़ती है। देखिए, कई राज्यों में, भाजपा शासित राज्य और कोई राज्यों ने एक मॉडल भी उन्होंने खड़ा किया। जिस राज्य में संभावना है, मोदी जी ने अपने राज्य में एक ज्योतिग्राम स्कीम चलाया। आज गुजरात की हर एक गांव में 2 बिजली की लाइन है, एक घर के लिए, एक खेती के लिए। उसमें दोनों को फायदा मिल रहा है। बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छा, गुजरात की एजुकेशन लेवल बढ़ा है, गुजरात के गांव में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, माइक्रो इंडस्ट्री की लिए, एक खेती के लिए, उसमें दोनों को फायदा मिल रहा है। बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छा, गुजरात की एजुकेशन लेवल बढ़ा है, गुजरात के गांव में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, माइक्रो इंडस्ट्री की मात्रा बढ़ी है, खेती भी अच्छी हो रही है। क्या सिर्फ खैरात बांट देने से हो जाता? खैरात बांटने से नहीं होता। उनको शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, उनको स्वाभिमानी बनाना पड़ेगा, उनको स्वावलंबी बनाना पड़ेगा। राज सत्ता की दायित्व होती है लोगों को गरीब नहीं करना, लोगों को की गरीबी को निवारण करना। खैरात बांटने से गरीब होता है, एम्पावर करने से, सशक्तिकरण करने से उनकी जिंदगी से गरीबी चली जाती है। The other thing about Modi's style of governance is that he prefers to work through bureaucrats rather than ministers. In Gujarat we have seen the bureaucrats he gets powerful bureaucrats as long as they follow policy guidelines. In fact, we have spoke to Saurabh Patel. He says I met an industrialist who had 20,000 crore in the state, and he came and gave me a visiting card. He says, my investment is done, everything is done, I am just giving you my card to say thank you. I have not need to meet the minister, the bureaucrats have done enough for me. So will this kind of a model work in India? यही तो मॉडल है। आप एक तरफ से कहते हुए सारा चीज फाइल दब के, आज भारत की अर्थनीति की दुर्गति क्यों हुई है? ये दुर्गति के कारण क्या है? दुर्गति कारण कि भारत सरकार में बैठे हुए मंत्री सारे फाइल को दबा के बैठे, पैसा कमाए। मंत्री अपने भाइयों के नाम पे फाइल कर दिए, मंत्री अपने घर वालों के नाम पे फाइल कर दिए, मंत्री अपने संबंधियों के नाम पे फाइल कर दिए। ये आप चाहते हो? एग्जीक्यूटिव की काम है सारा चीजों को आगे बढ़ाना, उत्तरदायी के साथ आगे बढ़ाना, ट्रांसपेरेंट ढंग से ऊपर बढ़ाना। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की काम है उसको दिशा देना, उसको जन आकांक्षा के साथ जोड़ना। फाइल तो डे टू डे करने का काम तो अमला तंत्र की है, ब्यूरोक्रेसी को तो काम ही है।
So your ministerial colleagues won't feel left out because you know what ministers are like. Nobody wants to give up power. They want to control everything. Will they be happy with this kind of a model? Because see, in Gujarat, the state leaders, they will listen. But in Delhi, he has to deal with powerful party colleagues from the center. Will Sushma Swaraj, for instance, agree to this? देखिए, ऐसा कोई किसी की दुविधा नहीं है. ये एक आकलन आप लगा रहे हो. देश की जनता ने उस नेतृत्व को इसीलिए स्वीकृति दिया है कि ये एक पारदर्शी और उत्तरदायी शासन चाहिए, और वही दिया जाएगा. One thing, Mr. Pradhan, tell me how running a state is going to be very different now from running a large country. We have seen some chief ministers who become prime ministers with not much success. So how will Modi be different? What has he got that others don't? देखिए, नरेंद्र मोदी जी सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है. वो तो 12-13 साल मुख्यमंत्री एक योजना पे बने. लेकिन मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी देश की बहुत दिनों के बाद ऐसे एक प्रधानमंत्री बनेंगे जो अपने सामाजिक जीवन काल में पिछले 30-35 साल में देश की लगभग जिला उन्होंने प्रवास किया. जिला में रात गुजारा होगा. He has toured the country. एक संगठक के नाते, एक राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते और एक राजनीतिक नेता के नाते अभी तो इन्होंने 5000 से ज्यादा कार्यक्रमों में भाग लिया एक साल के अंदर, एक प्रधानमंत्री प्रत्याशी के नाते, संवाद के नाते. लेकिन उसके पहले ऐसा ही एक नेता बनने वाले हो कि देश की हर एक जिला में जाके जिला की समस्या क्या है, जिला की जनजीवन क्या है, और मोदी जी की जिस प्रकार की स्मरण शक्ति, परिस्थिति के बारे में, ये उनकी जो की भूमिका, एक परिव्राजक की भूमिका, ये देश को एक नई ऊंचाई में ले जाने के लिए मदद करने वाला है. So unlike Rahul Gandhi, Modi doesn't have to go for discovery of India tours. मैं कहा ना कि देख, ये एक शोध की विषय बननी चाहिए कि प्रधानमंत्री बनने के पहले इतनी बड़ी एक भ्रमण करके, देखो देश चलाना कोई पोजीशनिंग की बात नहीं है. देश की आस्था जितना, मैं आज चुनाव में हारे हुए हैं, मैं उनको आहत नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक क्या कहूं कि मैं कि अभिनय करके एक पोजीशनिंग करके हम देश के गरीबों के साथ जुड़ रहे हैं. इसीलिए तो नरेंद्र भाई जब कह दिया कुछ लोगों को गरीबी की पर्यटन में रुचि है तो चिढ़ गए वो लोग. ऐसा नहीं. देश आज इसीलिए नरेंद्र मोदी जी पे आस्था स्थापित किया है क्योंकि उन्होंने देश की समस्या के साथ खुद को रिलेट किया, जोड़ा. देश को जानते थे इसीलिए रिलेट कर पाए. ये उनकी एक बड़ी विशेषता है. मोदी जी ने एक और चीज किया, ही इज कॉल्ड फॉर स्वेयरिंग इन द पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर. लॉट ऑफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को न्योता देना वाज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल फ्रॉम हिम हु हैज बीन सो हार्ड लाइन अगेंस्ट पाकिस्तान. उनकी सारी कैंपेन. सो आर वी सीइंग कि जो ऑपोजिशन रोल हो गया. देखिए, मोदी जी जो थे मेरे दृष्टि से वही है. उसको परिस्थिति के अनुଯାयी, समय के अनुଯାयी उसको बाकी समाज और समाज की विभिन्न घटक, आप जैसे पत्रकार मित्र उसको अपना तरीके से आकलन कर रहे हैं. प्रजातंत्र में इस प्रकार की आकलन होनी चाहिए, आकलन बढ़नी चाहिए, आकलन बदलनी चाहिए. ये अच्छे डेमोक्रेसी की लक्षण है. लेकिन मेरे मानने में मोदी जी जो थे वही है. और देश हित में उन्होंने एक विषय कहा था कि देखो हम अपने देश चलाएंगे, देश हित को पहले सर्वोपरि रख के. इसीलिए देश हित में जो अच्छा होगा उसको करने वाले हैं. तो विल मोदी जी फिनिश वाजपेयी जी लाहौर जर्नी? जाएंगे? देखिए, ये तो कूटनीतिक विषय है ना. जब प्रधानमंत्री बैठते हैं विदेशियों के साथ रिश्ता, विदेश देशों के साथ पड़ोसी देशों की कैसे रिश्ता रहेगी, आज की परिस्थिति में देश हित को सामने रखते हुए चिंता करेंगे. और उन्होंने एक बहुत बढ़िया शब्द कहा कि हम भारत की रिश्ता रखेंगे, ना किसी से आंख चुरा के, ना किसी से आंख झुका के, आंख में आंख मिला के हम रिश्ता रखेंगे. उस ढंग से एक सशक्त भारत के नेता के नाते वो रिश्ता रखने वाले हैं. चलिए, आखिरी सवाल है, धर्मेंद्र प्रधान का क्या फ्यूचर है? क्या आप मोदी मंत्रालय में काम करेंगे और विल यू कैरी ऑन योर वर्क इन द पार्टी? देखो, हम तो इस मुहिम के एक गिलहरी की भूमिका में काम करने वाले हैं. हम तो अपने बालू झाड़ने का काम कर ही रहे हैं, उतने में तृप्ति है. ये कम काम है क्या? इतने बड़े मुहिम चली, आज देश में एक सशक्त शासन हुई. मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इतने बड़े मुहिम में इतने बड़े जो उपलब्धि देश की जनता ने किया, उस मुहिम में उस सेतु बांधने में हम भी गिलहरी का नाम नाते एक बालू झाड़ दिए 2-4 बूंद, तो उतने में संतुष्टि है. चलिए, वी विल कीप एन आई ऑन यू. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू न्यूज़ एक्स एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट.